اچھا، ترجمان پاک فوج کی پریس کانفرنس پر افغانستان میں طالبان رجیم کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ ٹویٹ میں فرمایا کہ افغانستان کے حکومتی اور سماجی ڈھانچے سے متعلق دیے گئے بیانات حقائق کے منافی ہیں، یہ ان کا کہنا تھا۔ کیوں وہاں پہ خواتین بچیاں ہائر ایجوکیشن حاصل کرنا شروع ہو گئی ہیں؟ مطلب دیکھ لینا پھر اس کسی کے اچھا آگے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آئیں ذرا بات کرتے ہیں اس پہ بھی۔ ریئلی وانٹ ٹو نو کہ سب سے پہلے تو ضرورت کیا پڑ گئی تھی اس پریس کانفرنس کی؟ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ۔ شکیل فرمان علی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بیورو چیف ہیں جیو نیوز پشاور سے، اور محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سیکورٹی ایکسپرٹ ہیں بالکل، ہمارے شو پہ ہوتے بھی رہتے ہیں۔ This time he's here in the studio so in the studio ہیں، تو آئیں ذرا انہی سے بات سٹارٹ کرتے ہیں۔ محمد علی صاحب پہلے تو ذرا یہ واضح کر دیں کہ یہ پریس کانفرنس what happened that we had to have this press conference؟ ضرورت کیا تھی؟ Thank you. Thank you. بالکل، یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ 2016 کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی ٹون سیٹ کر دی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سیاسی وجہ صرف نہیں ہے، اس کی 2026 کے لیے یہ پہلی پریس کانفرنس ہے ڈی جی ایس پی آر کی، اور ان کا جو بیانیہ ہے اس کے پیچھے 3 محرکات ہیں۔ پہلی بات یہ کہ فوج کا جو اعتماد ہے مئی میں جو بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی، اس میں جو انہوں نے بہت ہی عبرتناک شکست دی بھارت کو، اور پھر اس پریس کانفرنس کا جو اصل کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ 2025 میں ہم نے جتنے دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا پچھلے 10 سال میں نہیں کیا، تو یہ دہشت گردی کے خلاف حالانکہ ان کی کارروائیوں میں کافی اضافہ ہوا ہے، لیکن جو کامیابیاں بھی فوج نے حاصل کی ہے اس اعتماد کا ڈی جی ایس پی آر اظہار کر رہے تھے کہ جناب ہم نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو بھی سرنگوں کیا، اور ساتھ ہی ساتھ 10 سال میں دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ کامیابی بھی اسی سال حاصل کی۔ اور تیسری بات میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اصل جو میسج ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں ان کو سیاسی جماعت اور حکومت کی سطح پر ڈیل کیا جائے، جو قانونی معاملات ہیں یا کرمنل معاملات ہیں ان کو عدلیہ کے ذریعے ڈیل کیا جائے۔ اسٹیبلشمنٹ از ان نو موڈ کہ وہ یا تو سیاست میں مداخلت کرے، کسی کو اولیو برانچ دے، کنسیشن دے، یا عدالتی کارروائی پہ اثر انداز ہو۔ دوسرا میسج دہشت گردوں کے لیے ہے کہ جناب ان کے ساتھ کسی قسم کا پی ٹی آئی کے خواہشات کے باوجود کوئی میڈیشن یا نہیں کی جائے گی۔ تو بہت ہیں، افغانستان کے لیے بھی ہیں، ہندوستان کے لیے بھی ہیں، اس پہ بھی ہم سرٹنلی آئیں گے۔ شکیل فرمان علی، ہم نے دیکھا خیبر پختونخوا، آپ کو پتا ہے دہائیوں سے لٹرلی اب تو دہشت گردی کی زد میں ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، ریسنٹ پاسٹ میں بھی، ویسے ادروائز ماضی میں بھی۔ یہ حکومتی وزراء بھی اب کہتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں، اور کل کی پریس کانفرنس کے الفاظ تھے کہ یہ فتنہ الخوارج کے قریب آنا چاہتے ہیں، یا یہ ان کے سمپیٹائزرز ہیں اگر بغیر کوئی لگی لپٹے کہا جائے، یا ان کی تائید، مطلب ان کے سائے تلے یہ پنپ رہے ہیں بیسکلی، اور ایک نیکسس اسٹیبلش کرنے کی بھی کوشش کی گئی۔ حکومتی وزراء یہ کہتے ہیں کہ بھئی سب پہ حملے ہوتے ہیں، ان پہ نہیں ہوتے ہیں۔ ذرا ہمیں فیکٹس بتائیے کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ ویسے تو کسی پہ بھی حملے نہیں ہونے چاہیے اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن کیا ہم نے دیکھا جے یو آئی ایف کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اے این پی تو آپ کو پتا ہے پہلے ہی دہشت گردوں کے نشانے پہ ہمیشہ سے ہی رہی ہے، لیکن پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے لوگ کیا نسبتاً محفوظ ہیں اپنے بیانیے کی وجہ سے؟ ذرا فیکٹس ہم سے شیئر کریں۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف نے کا جو بیانیہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے آئی بی اوز یا آپریشنز نہ کیے جائیں، تو دیکھیں ایک وجہ جو ہے نچلی جو پارٹی کی تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے لیڈرشپ پر دباؤ ہے، اور وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ماضی میں عوامی نیشنل پارٹی جس نے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ کھڑی ہوئی تھی اور ان کے کارکنوں اور لیڈرز کو نشانہ بنایا گیا تھا، تو وہ اپنی پارٹی کے اوپر یہ دباؤ بھی ڈالتے ہیں کہ کہیں ہمیں بھی اس صورتحال کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کا جو بیانیہ ہے، ماضی میں بھی جو جماعتیں تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کے حق میں نہیں تھیں، ان کو جو ہے رہنماؤں اور سیاسی کارکنوں کو جو ہے کم نشانہ بنایا گیا۔ وہی صورتحال جو ہے خیبر پختونخوا میں اب بھی ہے کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف نے ان سے مذاکرات کیے اور یہ یہاں پہ آئے، تو اس کے بعد سے جو ہے آپ دیکھ لیں کہ
इनके ख़िलाफ़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों रहनुमाओं के खिलाफ इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ हुई हैं, वो भी जो है मतलब बहुत कम जो आप कह सकते हैं कि कार्रवाई दीगर जमातों हैं, जो अवामी नेशनल पार्टी हो गया, JUU होगी और दीगर जो जमातें उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम साहब को देखें, उनको मुतअद्दिद मरतबा जो है निशाना बनाया, लेकिन वो महफूज रहे। तो दीगर जो जमातें हैं उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयाँ की हैं और उनको निशाना बनाने की कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हम चाहते हैं अल्लाह करे कि उनको भी निशाना बनाए और वर्करों को उनको भी अल्लाह महफूज रखे। लेकिन एक वजह ये भी है कि देखें, एक जब आप रियासत के साथ जो है खड़े होंगे दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो आपको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। और यही वजह है कि सुहेल आफरीदी साहब जो है, और यहाँ पे जो जरगा वहाँ पे भी जो है बेशतर जमातों की यही राय थी कि इनके ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन न किए जाए। और सुहेल आफरीदी साहब का जो अपना इलाका है खैबर, वहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो है वहाँ से अच्छा शकील, एक ब्रीफली एक सवाल का जवाब दीजिएगा। एक ड्राइंग रूम डिस्कशन भी होती है, लेकिन जाहिर है उसका हकीकत से कितना ताल्लुक है हम आपसे जानना चाहते हैं। हमें ये पता है, दिस इज़ अ फैक्ट कि खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे एरियाज़ मगरिब के बाद नो गो एरियाज़ बन जाते हैं, लेकिन ये जो है कि वहाँ की मकामी सियासी क़यादत लिटरली भत्ता देती है तालिबान को, इसमें कितनी सच्चाई है मुख्तलिफ इलाकों में? देखिए, हमने सुना है, ये इतलात हैं कि बाज़ सियासतदान और ताजिर जो हैं और इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनसे जो है इस वक्त भी इस किस्म के जो है काम जारी हैं और उनसे भत्ता लिया जाए। लेकिन ये चीज़ें जो इतलात हैं कि उनसे भी लिया जाए, लेकिन ये चीज़ वो रिपोर्ट नहीं करते, इत्तलात सर्टनली मौजूद है। अच्छा, ये बड़ी कंसर्निंग बातें हैं एक्चुअली। मतलब फिर वो रिट ऑफ द स्टेट वाली जब बात आती है तो वो तो फिर बिल्कुल नजर नहीं आएगी, बिकॉज अगर आपकी सिक्योरिटी कहीं और ही आप अपना तहफ़्फ़ुज़ मांग रहे हैं और अगर भत्ते वाली जो आपने बात की है, दैट इज़ वेरी कंसर्निंग। मोहम्मद अली साहब, आप भी बताएं, मतलब अब हमें ऑब्वियसली जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है DG ISPR की तरफ से, इट स्टार्ट्स मेकिंग मोर सेंस व्हेन यू सी द ग्राउंड रियलिटीज़ एज वेल, और ख़ास तौर पे KP में जहाँ एक सिंपैथी है फॉर तालिबान, और इवन आपको पता है किनशिप है फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर एज वेल, इसलिए उनको ऑपरेशन जो है वहाँ कोई उनके अगेंस्ट होता हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अच्छा लेकिन आप इसमें मुझे ये बताइएगा, हम आपस में भी ज़ाहिर एक डिस्कशन कर रहे हैं, इसको हम सिंपैथी कहें, इसको हम क्या कहें? एक टाई तो है अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है जी, एथनिक टाइज हैं वो एस्टैब्लिश हो गए, लेकिन एट द सेम टाइम मेरा तो नहीं ख्याल कि KP के अवाम की कोई सिंपैथी होगी टुवर्ड्स तालिबान। अवाम की वजह से तो कोई से भी they have lost their children at the hands of the terrorist. So क्या किस तरह से अली साहब हम डिफाइन करें? कहता हूं कि आपसे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि सबसे ज़्यादा जिस सूबे के अवाम ने सफ़र किया है वो KP के है। 80% से ज़्यादा दहशतगर्दी की वारदातें वहाँ हुई हैं। APS का जो सान्हा है वो कहाँ हुआ था? पेशावर में हुआ था। वो सबसे ज़्यादा हमारे जो पुलिस के जवान हैं, FC के जवान हैं, फ़ौज के जवान हैं, इवन जो आम शहरी हैं वो KPK के मुतासिर हुए। सबसे ज़्यादा तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम का नुकसान KPK का हुआ है। अच्छा, दूसरी जानिब में एक और कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा बताना ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि देखिए इस वक्त जो फ़ौज की क़यादत है ना, पिछले 26 साल का उनकी सोच पिछली दौर के जो क़यादत है उससे क्यों मुख्तलिफ है? उसकी वजह यह है कि 26 साल में इन्होंने तालिबान से जंग की है, उनको खून दिया है, शहादतें दी हैं, जनाजे उठाए हैं, उनके यतीमों के सर पे हाथ रखा है, उनकी बेवाओं के सर पे चादर रखी है। तो उनके लिए ये आइडियोलॉजिकल, इमोशनली अनएक्सेप्टेबल है कि कोई सियासी कुव्वत जो है सिंपैथी और स्पेस क्रिएट करे दहशतगर्दों के लिए, तो वो नफ्सियाती तौर पे भी फौज के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये सिर्फ एक प्रोफेशनल काम नहीं है। दूसरी बात, इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो जाहिर होता है कि बैटल लाइंस बहुत क्लियरली ड्रॉन है। एक तरफ पाकिस्तान की फौज है, रियासती इदारे हैं, वफाकी हुकूमत है, आलमी बरादरी है, इलाकाई ममालिक हैं और आलमी कानून है, और दूसरी तरफ भारत है, अफगान तालिबान हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं और उनकी हमदर्दी और सहूलतकारी करने वाले अनासिर हैं। तो ये बैटल लाइंस बहुत क्लियरली ड्रॉन है। हम इसी फहरिस्त में फिर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी क्या हम शामिल कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है कि ये दहशतगर्दी के जो काइनेटिक एस्पेक्ट्स हैं उसके खिलाफ तो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन और मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो होता है, लेकिन उसके जो कॉजेज और वजूहात हैं वो तो सारी सिविलियन डोमेन में है। 4 चीजें देखिए, सिर्फ 4 चीजें जी।
नाक़िस है। जो 38 के करीब रेफ्यूजी कैंप्स हैं इलीगल अफगान्स के, वो अभी भी वहाँ हैं, जबकि बाकी सूबों में ख़त्म कर रहे हैं। वहाँ से दहशतगर्दी की सहूलतकारी होती है। तीसरी बात कि जो नेक्सस है स्मगलिंग का, ड्रग स्मगलिंग का, क्राइम का, और जिससे माशी ताउन की प्रोग्राम किया जाता है दहशतगर्दी का, वो भी वही है। तो ये निज़ाम रियासत और वाकई हुकूमत काफ़ी मैं समझता हूँ कि परेशान है कि ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत है कौमी सलामती के हवाले से कि भाई आप जो इलीगल अफगान हैं उनको बाकी जो सूबों की तरह भी भेजें, जो माशी मावनत है, जो हथियारों की तरसील है, जो स्मगलिंग है, उसका भी खात्मा करें। अच्छा, लेकिन अब हमें नजर आ रहा है, वो एक सिंपैथी की भी हम बात कर रहे थे और हम आवाम की बात कर रहे थे। डेफिनेटली नजर भी आ रहा है कि केपी हुकूमत की वो मोटिवेशन नहीं है परहैप्स टू टैकल दिस इशू। अगर हम अफगान तालिबान की बात करें, आपने रेफ्यूजी कैंप्स में मतलब ड्रग स्मगलिंग, बहुत सी चीजें हैं जो हो रही हैं, ये इतनी लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों है? अच्छा, और उसके बाद उनकी अपनी रीजंस है, वो उसकी वजूहात बयान करते हैं। मुख्तसरन समझता हूँ हुमायूं अब्दुल्ला कि इसकी बुनियादी वजह उनकी सियासी हिकमत अमली है। वो जमात ये समझती है कि काउंटर टेररिज्म चूंकि पाकिस्तान की कौमी सलामती का सबसे बड़ा चैलेंज है और पाक फौज और रियासत को सबसे बड़ा जो थ्रेट आ रहा है वो इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से दहशतगर्दी से, तो दहशतगर्दी के मामले पे अदम ताउन के जरिए से ये अपनी सियासी हिकमत अमली के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट के ये तो लेवरेज हुआ ना फिर। बिल्कुल, एंड इन अ वेरी सेल्फिश फॉर्म एज वेल। नहीं तो फिर हम उस अवाम का क्या करें जो बार बार उनको वोट भी करते रहते हैं? दे आर द वंस हु आर सफरिंग। यही बताना अवाम को आपके जरिए से जरूरी है कि देखें कोलैटरल डैमेज इस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी जो पीटीआई की है कि अदम ताउन की जो हिकमत अमली है रियासत और फौज के साथ, उसका जो खमियाजा है वो मासूम अवाम और शहरी केपीके के भुगत रहे हैं। उनकी जानें, उनका माल, उनकी स्टेबिलिटी, उनकी प्रोग्रेस मुतासिर हो रही है। तो जो जी शऊर और समझदार हमारे भाई हैं केपीके के, उनको अपनी सियासी ऐनक उतार के हकायक को देखना चाहिए और कौमी सलामती के लिए अगर वो अपने सूबे की बाकी सूबों की तरह तरक्की, खुशहाली, इस्तेहकाम चाहते हैं तो उनको रियासत और हुकूमत के साथ मिलकर खड़ा होना चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आपने दिया है। आप वैसे तो इस पे इसके बहुत से पहलुओं पे बात हो सकती है, लेकिन अली साहब शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर शकील फरमान ने भी हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच, आपने हम तक हकायक पहुंचाए।